Hello learners and welcome to your own channel LIY English Learn It Yourself. The topic of the video today is figures of speech. Figures of speech that we commonly use and that are commonly asked in exam if you're in 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So question on figures of speech will come for 2 marks definitely if there is a passage or there is a stanza for comprehension. And this is considered as an objective type of question. So if you give the right answer in a proper way, you will get full 2 marks. So here I am with 10 figures of speech, 10 easiest, the most simpler one, and most commonly used and most commonly asked in exam. And I'll be explaining with English and Hindi both and with simple examples so that you master over all these figures of speech. Let us start the video. First, let us understand what you mean by figures of speech. It is a word or a phrase that is used to beautify the language. किसी शब्द को इस तरह से यूज करना कि सुनने में कानों को ज्यादा अच्छा लगे और आपकी बात को बहुत अच्छे से बयान कर सके और ब्यूटीफुल बनाए. So figure of speech का main purpose होता है to give the dramatic effect uh, to your message, to your line, and to beautify it, to make it different than the ordinary. कॉमन बहुत आम बातों से अपनी बात को अगर आपको अलग तरीके से बताना है तो आप फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं. एंड इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट फिगर ऑफ स्पीच इज फाइन found only in the poem and they are used only by the great writers and the poets, but it is not true. Figures of speech are something that all of us, every one of us uses while we are conversing in our day to day lives. For example, बहुत कॉमन सी बात है जैसे कि अगर आपने अपने दोस्त को आप कहते हो, बहुत कॉमनली हम बात करते समय बोलते हैं कि जाओ मेरा दिमाग मत खाओ. सो दिस इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच. ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. इट्स जस्ट दैट यू डोंट इवन रियलाइज इट. फॉर एग्जाम्पल, जाओ मेरा दिमाग खाओ का मतलब ये नहीं होता है कि सच में आपका दोस्त आपका दिमाग खा रहा है. इसका मतलब ये होता है कि वो शायद आपको सता रहा है या बोर कर रहा है और आप उससे कह रहे हो कि आप मुझे मत सताओ. लेकिन बजाय इसके कि आप उनको बोले कि मेरा मुझे मत सताओ, आपने कहा मेरा दिमाग मत खाओ. सो यू यूज्ड अ फिगर ऑफ स्पीच. So figure of speech is something that all of us use to beautify our language. So it is necessary that we should know what is figure of speech and what are the basic figures of speech. So let's start the video without wasting our time. The number one is alliteration. Figure of speech of alliteration is there in a line when there is a repetition of the initial sound of the words given in the line. For example, if you see, she sells seashells by the seashore. Here, if you see, the sound of S is repeated multiple times in the line. So that is why in this line, the figure of speech is alliteration, because the sound of S is repeated for the poetic effect. In the example 2 also, if you see, Nick needed new notebooks. Here also the alliteration is there in the line, the figure of speech of alliteration, because the sound of N is repeated multiple times for the poetic effect. So alliteration is there in a line when there is a repetition of a sound, of a particular sound in the words given in the line. Number 2, repetition. Repetition when the words are repeated more than one time in a given line. And many a times students get confused between alliteration and repetition. Alliteration is when only a sound is repeated. Here if you see sa, na is repeated. So only sound is repeated, then there is alliteration. But if the whole word is repeated, then it is a repetition. If you see this example, Johnny, Johnny, yes, Papa, the whole word Johnny is repeated 2 times in the line. So the figure of speech in the given line is repetition. Same in the second example, twinkle, twinkle, little star. The twinkle, twinkle, this word is repeated 2 times. So the figure of speech in the given line is repetition. Number 3 is simile. Simile is when we compare two things with each other, while these two things are quite different.
फ्रॉम ईच अदर। दो ऐसी चीजें जो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं, बिल्कुल अलग है, उन दो चीजों के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ पे ही मीन्स मैन, लायन मीन्स एनिमल। ह्यूमन बींग और एनिमल में कोई कंपैरिजन नहीं है, दे आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, बट स्टिल एक मैन में और लायन में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे ब्रेवरी को लेके, दैट इट मीन्स दैट दे बोथ आर ब्रेव, और द मैन इज एज ब्रेव एज अ लायन। जो आदमी है वो शेर की तरह बहादुर है। So इस लाइन में man is compared to a lion. So here the figure of speech is simile. Similarly, in the second example, they fought like cats and dogs. वो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे. Here also they means human beings and cats and dogs, of course, animals. So comparison is made between the human beings and the animals. So here the figure of speech is simile. Number 4, metaphor. It is an applied simile. It's when two things are compared directly without using words like as and like. Many a times we get confused between simile and metaphor. The only difference between simile and metaphor is that in simile, as you have seen, words like as and like are used to compare. दो चीजों को कंपेयर करते समय as and like, हिंदी में हम बोलते हैं की तरह और की जैसे, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, तो ये सिमिली होता है। मेटाफर में ऐसे कोई वर्ड्स का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली चीजों को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ नाइट आउल, वो रात की उल्लू की तरह है। समवन हु हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट, सो दे आर कॉल्ड एज नाइट आउल। जो रात को सो नहीं पाते, हम उसे कहते हैं कि वो उल्लू की तरह जागता रहता है। सो दिस इज द सेंटेंस दैट शी इज अ नाइट आउल। यहाँ पे मेटाफर है, शी को कंपेयर किया गया है, लड़की को कंपेयर किया गया है आउल से, उल्लू से। लेकिन यहाँ पे एज और लाइक वर्ड नहीं यूज हुआ है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि वो उल्लू की तरह है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो उल्लू है। तो इसीलिए इसको कहते हैं अप्लाइड सिमिली, डायरेक्टली कंपेयर करना विदाउट एनी वर्ड्स एज एंड लाइक। सिमिलरली द अदर एग्जांपल, इफ यू सी, टाइम इज मनी। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि टाइम भी बहुत प्रेशियस है, मनी की तरह बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि टाइम इज लाइक मनी, टाइम मनी की तरह है, वक्त मनी पैसे की तरह है, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं टाइम इज मनी, वक्त ही पैसा है। सो हियर ऑल्सो द फिगर ऑफ स्पीच इज metaphor. Again, the difference between metaphor and simile is about these words as and like. Simile में as and like का words use करके compare करते हैं, metaphor में directly compare करते हैं। नंबर 5, यूफेमिज्म। जब कोई दुख वाली बात को या कोई बहुत ज्यादा रूड बात को बहुत सॉफ्ट शब्दों में बयान करने की कोशिश की जाती है, तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। व्हेन वी आर अबाउट टू कन्वे हार्श और ब्लंट रियलिटी और ट्रुथ using comparatively milder or softer words, then there is a figure of speech of euphemism. For example, ही इज अ लिटिल थिन ऑन टॉप। ये फ्रेज है लिटिल थिन ऑन टॉप, इसका मतलब होता है कि उसके सर पे बाल नहीं है। ऑफ कोर्स अभी किसी को आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो गंजा है, ये किसी को भी सुनने में रूड लगेगा, बहुत हार्श लगेगा। तो उसकी जगह पे हम कह सकते हैं ही इज अ लिटिल थिन ऑन टॉप। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज अ बाल्ड, हमने कहा ही इज अ लिटिल थिन ऑन टॉप। तो ये जो बालनेस की जो ये रियलिटी है, जो ऑफेंसिव हो सकती है, किसी के लिए रूड हो सकती है, उसको हमने बहुत माइल्ड शब्दों में यूज करके सेम चीज को कहा है, बयान किया है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। एग्जाम्पल 2, इफ यू सी हर ग्रैंडपा पास्ड अवे। ये बहुत कॉमनली हम ऐसे नहीं बोलते कि वो मर गया, उसका दादा मर गया, उसका दादी मर गई। ये बहुत बहुत बुरा लगता है सुनने में किसी के लिए भी, तो हम कहते हैं वो गुजर गए, या हम कहते हैं ना कि वो परलोक सिधार गए। सो ये जो हम कहते हैं, ये एक्चुअली हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं ताकि हम किसी सुनने वाले को बुरा न लगे। जो हार्श रियलिटी है डेथ की, उसको हम थोड़ा सॉफ्ट वर्ड्स में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है यूफेमिज्म। अगर बहुत हार्श रियलिटी को हम बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में बता रहे हैं, तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। नंबर 6, हाइपरबली। चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, इस हद तक कि वो इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल लगे, तो ऐसी जगह पे
फिगर ऑफ स्पीच होता है hyperbole. So hyperbole is using exaggerated and impractical statements to the point that everything seems like impossible and not true. Here, if you see example, I have told you 1,000 times to not disturb me when I'm studying. जैसे हम किसी को कहते हैं कि मैंने तुमको 1,000 दफा कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, तो 1,000 दफा कोई भी नहीं कह सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. आप किसी को 1,000 दफा बार बार ये नहीं बोलोगे. आपने बार बार बोल सकते हो, 1,000 दफा नहीं बोल सकते हो गिन के. पहली बात तो कि अगर बोला भी हो तो उसको काउंट करना मुश्किल होता है. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि 1,000 बार किसी को कहना, ये इम्प्रैक्टिकल है और एग्जैजरेटेड है. हमने बड़ा चढ़ा के कोई बात कही है. हम बड़ा चढ़ा के इसलिए कहते हैं ताकि हम बता पाए, फोर्सफुली अपना जो मैसेज है किसी को दे सकें. वी वांट टू कन्वे द इंटेंसिटी, वेट इन आवर मैसेज, तो हम हाइपरबली का यूज करते हैं. इफ यू सी एग्जांपल 2, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि मैं पूरा घोड़ा खा सकता हूँ. So this is also impractical and not true. It does not make any sense. But इससे ये पता चलता है कि सामने वाला जो भी इंसान है वो बहुत भूखा है. वो हॉर्स खाएगा कि नहीं वो कोई बात नहीं है. बात इतनी पता चल गई है, हमें इतना समझ आ गया कि वो बहुत ज्यादा भूखा है. So उसको ये बताना है कि वो कितना ज्यादा हंग्री है. So he will use that comparison. तो अगर हम बातों को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलें, इम्प्रैक्टिकल चीजों को इंक्लूड करके बोले, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबली. नेक्स्ट, ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया तब होता है जब किसी लाइन में ऐसे वर्ड्स का यूज होता है that does not convey any meaning, but they convey the sound of a particular thing. They does not have a particular meaning on their own. For example, splash, buzz, click, hiss. ये ऐसे शब्द हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये साउंड को दर्शाते हैं, कोई चीजों की आवाज को बताते हैं. स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, पानी की जो आवाज होती है उसको स्प्लैशिंग बोलते हैं. बज, जब फोन बजता है, रिंगटोन जो होती है, तो उसको हम बोलते हैं बज. क्लिक, जब हम कुछ टाइप करते हैं फोन में तो जो आवाज आती है, या जो लैपटॉप में अगर हम टाइप करते हैं तो जो क्लिक की आवाज आती है, तो ये जो क्लिक है ये साउंड है. एक्चुअली साउंड को दिखाता है. हिस, हिसिंग ऑफ स्नेक, स्नेक की आवाज को हिसिंग कहते हैं. बार्किंग ऑफ डॉग्स, तो बार्क का मतलब भी कोई खास मतलब नहीं है उसका, यही है कि जो डॉग्स जो आवाज निकालते हैं उसको हम बार्क कहते हैं, बार्किंग. सो ऐसे शब्दों का यूज करना लाइन में जिनका कोई मीनिंग नहीं है, बट वो सिर्फ साउंड को बताते हैं कोई चीजों की, कोई इंसान की, तो वो होता है ओनोमेटोपिया. नंबर 8, पर्सोनिफिकेशन. ये बहुत कॉमनली यूज होता है और बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है. पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन वी टॉक अबाउट सम नॉन लिविंग थिंग एज इफ इट पोजेसेस ह्यूमन क्वालिटीज. कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई बेजान चीज के बारे में ऐसे बात करना जैसे वो उसमें भी जान है और उसमें भी ह्यूमन क्वालिटीज है, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, द स्काई वाज क्राइंग ऑन दैट सैड डे. उस दुख वाले दिन आसमान भी रो रहा था. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि द स्काई वाज क्राइंग, इट मींस देयर वाज अ रेन, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी. बट बारिश को बता दिया गया है कि वो स्काई के आंसू है, आसमान रो रहा है इसलिए बारिश हो रही है. So this crying is the quality of human being, while sky is a non-living thing. पर फिर भी हम कह रहे हैं कि आसमान रो रहा है. आसमान नहीं रो सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, पर्सोनिफिकेशन. इफ यू सी एग्जाम्पल 2, lightning danced across the sky. Lightning here means बिजली. बिजली जो है पूरे आसमान में नाच रही थी. So the डांस, इफ यू सी, डांसिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. डांस करना, नाचना ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है. लेकिन बताया जा रहा है कि जो बिजली है वो नाच रही थी, मतलब बिजली में भी ये क्वालिटी है कि वो नाच सकती है, विच इज अ ह्यूमन क्वालिटी. सो लाइटनिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग है उसके बारे में ऐसे बात करना जैसे कि उसमें ह्यूमन क्वालिटी है, ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच ऑफ पर्सोनिफिकेशन. Talking about non-living things and objects as if they possess human qualities. This is called as the figure of speech of personification. Number 9, antithesis. When in a single line, two opposite ideas, two antonyms, and two contrasting and contradicting ideas are used,
Then there is a figure of speech called antithesis. एक ही लाइन में दो अपोजिट आइडिया, दो अपोजिट वर्ड्स का यूज करना, उसे कहते हैं एंटीथेसिस. एग्जाम्पल 1, टू err is to human, to forgive is to divine. यहाँ पे err एंड forgive, गलती करना और माफ करना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. ह्यूमन एंड डिवाइन, इंसान और भगवान भी एक दूसरे के अपोजिट है. सो एक ही लाइन में दो अपोजिट आइडियाज यूज हुए, दो अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथेसिस. एग्जाम्पल 2, ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ अ रिच हार्ट. वो बड़े दिल वाला या अमीर दिल वाला गरीब इंसान था. सो हियर इफ यू सी द एंटोनिम्स rich and poor is they are used in a single line. एक ही लाइन में ये rich और poor जो एक दूसरे के opposite words है use हुए हैं, तो यहाँ पे भी figure of speech है antithesis. So antithesis is using opposite ideas in a single line. And the last one is inversion. Inversion when the normal order of the words is reversed or is changed. जिस तरह से शब्दों को अरेंज किया जाता है सेंटेंस में, उस ऑर्डर को चेंज करना, उसको रिवर्स करना, वो होता है इन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, शॉक्ड आई वॉज. ये नेचुरल ऑर्डर नहीं है वर्ड्स का. हम ऐसे लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे लिखते हैं, आई वॉज शॉक्ड. लेकिन आई वॉज शॉक्ड की जगह पे पहले लिखा है शॉक्ड कॉमा आई वॉज. तो ये हो गया इन्वर्जन. हमने जो वर्ड्स का ऑर्डर है चेंज कर दिया है. एग्जाम्पल 2, एन एक्सीलेंट डिसीजन शी मेड देयर. उसने बहुत अच्छा डिसीजन उसने लिया. हम ऐसे कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. शी मेड एन एक्सीलेंट डिसीजन देयर. बट यहाँ पे घुमा फिरा दिया गया है, ऑर्डर वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है. एन एक्सीलेंट डिसीजन शी मेड देयर. सो ये हो गया इन्वर्जन. So these are the 10 most commonly asked figures of speech. Now let us try to understand how, if a question on this topic comes, how you have to write the answer so that you get whole 2 marks. There are two types of question that can come on this topic. First type of question, दो तरह के सवाल आ सकते हैं इस question पे. एक तरह का ये होगा जो बहुत commonly आता है, name and explain the figure of speech in the following line. कि आपका पैसेज दिया रहेगा और उसमें लास्ट क्वेश्चन ये मोस्टली आता है कि उसी पैसेज की एक लाइन दी गई रहेगी और उस लाइन में क्या फिगर ऑफ स्पीच है और क्यों है, एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल, पैसेज में से ये लाइन दी गई है, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी. तो इसमें आपके हिसाब से क्या फिगर ऑफ स्पीच है? नेम एंड एक्सप्लेन. तो नेम मतलब आपको पहचानना भी और एक्सप्लेन मतलब आपको बताना भी है कि क्यों ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. The figure of speech in a given line is repetition as words are repeated in the line for the poetic effect. आप देख सकते हैं पूरे words repeat हुए, सिर्फ I think sea and air, ये 2 words छोड़ के बाकी सारे words एक ही line में 2 बार repeat हुए हैं. तो यहाँ पे figure of speech है repetition. Why? Because or as words are repeated in the line for the poetic effect. ये है perfect answer. You will get 2 marks easily. Now let's look at the second type of question. दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो पैसेज है कहा जाएगा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, या सिमिली की जगह पे हो सकता है एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इन्वर्जन, मेटाफोर, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है कि उस स्टैंजा में से इस फिगर ऑफ स्पीच का एक एग्जाम्पल दो. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये स्टैंजा दिया है तो आपको इसमें से पहचाना है कि ऐसा कौन सी लाइन है जिसमें सिमिली है as a figure of speech used हुआ है. So you will see third line, white as feather and white as a cloud. इस लाइन में as words use हुए हैं और comparison हो रहा है funeral shroud. अगर आप next line देखोगे, we were dead men's funeral shroud. shroud यानी कफन. तो इंसान के कफन को कंपेयर किया गया है, उसी सफेदी को कंपेयर किया गया है फेदर से, पंख से और क्लाउड से, बादल से. तो यहाँ पे कंपैरिजन में हुआ है बादल से और कफन से. तो ये यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. और मैंने पहले ही आपको एक टिप बताया था कि सिमिली और मेटाफर दोनों में से कौन सी है ये अगर पहचानना है तो सिमिली तब होगा जब एज या लाइक ये दोनों में से कोई एक वर्ड यूज हुआ होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं एज वर्ड यूज हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिमिली. तो आपको आंसर इस तरह लिखना है कि पूछा गया है गिव द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द गिवन स्टैंजा, तो जो आपको लगता है ये एग्जाम्पल है, आपको एज इट इज वो लाइन उतारनी है.
white as a feather and white as a cloud. और फिर नीचे explanation लिखना है, a comparison is made between a cloth and feather and cloud. So this is the perfect answer and you'll get 2 marks. So that's it for this video. I hope you enjoyed and you understood every bit of it. If you have any doubt, you can put in the comment section. Also, if you have a suggestion on any topic that you want a video of, that also you can put in the comment section. If you like this video, give a thumbs up, share and subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you all.